مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں سر نہیں ضرورت نہیں ون اینڈ ون سر آپ کی مرضی سر جیسے آپ رکھو گے. نہیں سر کوئی نہیں آواز نہیں آتی ہے سر سے. ٹھیک ہاں بیچ میں اتار لیں گے. ٹھیک ہے پلیز. ہاں آج ہم نے بیسیکلی آپ لوگوں کو اس لیے تکلیف دی ہے. یہ ہمارے ہیلتھ میلاز، ایک سیکنڈ میں ماسک اتار کے بول. ہمارے جو ہیلتھ میلاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک بلاک میں ہمارے ہیلتھ میلاز چل رہے ہیں، جو ایک انیشیٹو ہے ہمارے آنریبل پردھان منتری جی کے، کہ ہر ایک جگہ، ہر ایک بلاک میں ایک ہیلتھ میلاز ہم سٹارٹ کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہیلتھ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کام کر رہا ہے، نئی نئی اسکیمز کون سی آئی ہے. اور اس میں زیادہ سٹرس جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اور جو بھی ہماری اسکیمز ہے، جیسے کہ ہمارا نیشنل پروگرام فار پریونشن اینڈ کنٹرول آف کینسرز، ڈائبٹیز، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اینڈ اسٹروک. اس کے بغیر نیشنل پروگرام فار ہیلتھ کیئر آف ایلڈرلی، جیسا کہ آپ نے دیکھا لاسٹ منتھ ہی ہمارے ایل جی صاحب نے انوگریشن کری. یو ٹی میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 10 بیڈڈ ہم نے جیریٹک وارڈز بنائے، جو ایلڈرلی پاپولیشن جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے الگ سے ایک او پی ڈی رہے گا، اور الگ سے ان کا ایک ایڈمٹ جو وارڈ رہے گا الگ سے، اور جو فیسلٹیز ہوگی وہ الگ سے ان کے لیے ہوں گی. اس کے بغیر بھی ہمارا جو نیشنل پروگرام فار کنٹرول آف بلائنڈنیس، آیوشمان بھارت، جن اشدھی پروگرامز، نیشنل ٹبیکو کنٹرول پروگرام، راشٹریہ بال سوستھتا کاریکرم RBSK، جس میں ہمارے جو لوگ ہیں سکولوں میں جا کے 0 to 18 ایئرس اولڈ بچوں میں دیکھتے کوئی 4 چیزیں، کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، کنجنیٹل ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے، کوئی ڈیلے مائل سٹونز تو نہیں ہے، یہ یا کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. کیونکہ ارلی اگر ہم جائیں گے پرائمری سکولز میں یا ہائی سکولز میں یا مڈل سکولز میں، جتنا ارلی ہمیں کسی بچے کا چاہے ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹ ہو، کوئی کسی کو کنجنیٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے ماں کے جنمنے کے اسی ٹائم سے ہوتا ہے، اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے ان کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہوتا ہے اور پروگنوسس بیسٹ رہتا ہے. یہ چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارا نیشنل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ پروگرام بہت ہی ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، جس میں بہت سارے مینٹل ایشوز کو لوگ ابھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. جیسے کبھی کوئی کسی بچے میں کوئی پریشانی ہے، انگزائٹی ہوگی یا اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ اس کو پیر فقیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ اس کو کسی سادھو سنت کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو یہ اویئر کرنے کے لیے کہ مینٹل ہیلتھ ایک امپورٹنٹ، فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ امپورٹنس اگر ہوگی تو وہ مینٹل ہیلتھ کی ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں کچھ ایسے جیسے ڈپریشن ہے یا کوئی MDP ہے، مینک ڈپریسو سائیکوسس، کچھ ایسی ڈیزیز ہے جو پہلے بچے کو نہیں پتہ چلتا، اس کے بعد پیرنٹس کو نہیں، اس کے بعد ایون ڈاکٹروں کو بھی نہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے جو ہم نے اس کے بغیر بھی ہم نے 5 ڈسٹرکٹس میں ATF سینٹرز بنائے، ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی سینٹرز. ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں مینٹل ہیلتھ پروگرام چل رہے ہیں کہ لوگوں سے یہی گزارش ہے وہ ہاسپٹلز میں آئے اور ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم ان کو یہ بول دیں گے کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر بھی جو آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک جگہ، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، بلاک لیول میں، جو میرا اس کا مین مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو ان سکیمز کا پتہ چلے. یعنی NCD آج دیکھیے ایک وبا بن گیا ہے، جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے، ڈرگ ایڈکشن ایک وبا بن گئی ہے. اس میں کیسے ہم اس میں ایک اچھی چیز ہے، آپ بولو گے وہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے، 100% کیور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہماری ضرورت ہے، پیرنٹس کی ضرورت ہے، میڈیکل ہیلتھ سسٹم کے، ایون ٹیچرز جو بھی ایسوسیٹڈ سوسائٹی کے ساتھ ہے، ہم مل کے اس وبا کو ختم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہمارا جو NCD جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک گھر میں 1 یا 2 لوگ ہوتے ہیں، یا ہائپر ٹینشن ہوتا ہے ان کو، یا تمن پریشر آسان، نہ ڈائبٹیز آسان. ریزن یوت یوت اگر پریونٹو میجرز نمو یم دونوئی چیز روزنی نا، اگر پھر ہوا بھی خدا نہ خواستہ کسی کو ہو بھی گیا، اس کے لیے اگر وہ میجرز لے گا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا ہے. یہی چیزیں بولنے کے لیے، اور یہ ایک گیپ جو کمیونیکیشن گیپ رہتا تھا، اکثر آپ دیکھو گے کہ ہاسپٹل میں اتنا کام کرنے کے بعد بھی اگر کہیں کچھ تو جو گیپس رہتے ہیں بٹوین ہاسپٹل، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکلس اینڈ سوسائٹی، اس گیپ کو بھی کم کرنے کے لیے میلے ہم نے جو گورنمنٹ آف ہماری UT گورنمنٹ ہے اس نے اسٹارٹ کی ہے. لوگوں سے یہی اپیل رہے گی، یہی میرا ایک ایڈوائس رہے گا، وہ آئے اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اس میں گولڈن کارڈ بھی بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ گولڈن کارڈ ایک یونیک چیز ہے ہمارے UT کے لیے. تھرو آؤٹ انڈیا یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو BPL ہے.
यहाँ AAY है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ उनको मिलता है, लेकिन यहाँ हर एक के लिए आप भी निकाल सकते हो गोल्डन कार्ड में भी जो 5 लाख की फैसिलिटी इसमें मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन एडिशन टू दैट हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में लगभग अगर 4 दवाएं हैं 2-3 तो हॉस्टल में मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनको बताने के लिए, ये गैप दूर करने के लिए मेला हमने यहाँ पे ये स्टार्ट की है। यही गुजारिश रहेगी, आप आइए और जो भी कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर किसी स्कीम के बारे में हो, आयुष्मान भारत है हमारा, यही गोल्डन कार्ड का है, या बाकी स्कीम जो हमारी डिजिटल जो हम ये कर रहे हैं सारा हेल्थ सिस्टम, या वेलनेस सेंटर्स, जिस तरह सब सेंटर यहाँ PHC लेवल पे हमने वेलनेस सेंटर्स में 73 ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड 27 इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ें लोगों को बोलने के लिए मेलाज हैं, इसमें आइए हमारे साथ आप मिल के इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाएंगे, ताकि लोगों को पता चलेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है। नहीं ब्रेक्स में करेंगे ना, मुझे वही लग रहा है, अदरवाइज ज़्यादा हो जाए। बेसिकली मेन तो इसी का था। नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा एक साथ ज़्यादा हो जाए। नहीं ये थोड़ा सा बता देंगे, छोटा सा ये तो नहीं, ये वर्क डन तो है ही है, वो तो पता ही है आपको। बता दो सर एक। अच्छा, और जो इसके बगैर अब तो आप आई है तो आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर जो हमारा OPD में अगर हमने देखा था तो 87 लाख 2021 में, इस साल हमने 1,11,58,000 OPD देखा। हमारा IPD भी इस साल बढ़ गया है 2,69,000 से 3,87,000, यानी कि हर कोई पैरामीटर अगर देखा जाए, मेजर सर्जरीज, माइनर सर्जरीज, कोविड ट्रीटमेंट, नॉन कोविड ट्रीटमेंट, हर एक में 20 to 25% इंक्रीज हुआ है। इसके बगैर जो हमारी मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस ईयर, पहले मैं आपको ये बोलूं कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो इससे पहले हमारा 2 ही एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, एक तो यहाँ हमारा पुलिस का डी एडिक्शन सेंटर था और मेडिकल कॉलेज का, लेकिन इस साल हमने 5 एडिक्शन फैसिलिटीज़ 5 डिस्ट्रिक्टों में, कुलगाम, पुलवामा, शुपियाँ, बांडीपोरा और बडगाम में 5 ATF सेंटर्स हमने बनाए, और जिनका आज भी OPD बहुत अच्छा है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एडिक्शन वाला कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई भी होगा, उसको वहाँ ही ट्रीटमेंट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, डॉक्टर, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बगैर हमने डायलिसिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किए, 6 से 7 बेड। इससे पहले सिर्फ श्रीनगर में हुआ करता था या हमारे सिक्किम में था, आज आप देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और कुछ जैसे कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा है और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने वो एस्टेब्लिश किए। इसके बगैर जो DNB प्रोग्राम्स हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने स्टार्ट करे। डिप्लोमा नेशनल बोर्ड, जिसमें हमने डिग्रियां, जैसे मेडिकल कॉलेज में यहाँ हमारे बच्चे आते हैं, MD करते हैं या वो PG करते हैं, किसी में भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। एकेडमिक्स में और जो कॉलेजेस 1300 स्टूडेंट्स करंटली अंडरगोइंग पैरामेडिकल कोर्स जो हो रहे हैं हमारे, ये हमने अपग्रेडेशन कर दी। 5 A&M स्कूल्स एंड जो जनरल JNM स्कूल्स टू द लेवल ऑफ नर्सिंग कॉलेज हमने कर दिए इस साल। और जो हमारा ट्रॉमा केयर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट, इवन PHC पे हमारे एमरजेंसी ट्रीटमेंट रूम्स है, जहाँ पे जो भी इमरजेंसी आएगी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके अलावा ICUs, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU स्टार्ट करे। हालांकि आपने देखा होगा सेकंड वेव में वो ICU बराबर चले और वहाँ जो पेशेंट लोड रहता था 100% बेड ऑक्यूपेंसी रहती थी। उसका यही नतीजा हुआ कि यहाँ सेंटर लेवल, टर्शरी लेवल में बहुत कम लोगों को हमको रेफर करना पड़ा। और इसके बगैर जो टर्शरी केयर लेवल सर्विसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट या
आप देखते ही होंगे रोज़ाना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ ऐसे भी सर्जरीज हो रही है जो टर्शरी लेवल की है। और हमने इस साल डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स, यानी कि अगर किसी को कीमोथेरेपी देनी है वो कपारा का है, उसको हमने वहाँ ही एक डे केयर सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने सेंटर्स किए। अब जो हमारे लोग ट्रेनिंग के लिए गए 1 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कीमोथेरेपी मिल सकती है। ये समझे डोर नियर डोर स्टेप ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। इसके अलावा आपको पता है कि जन औषधि के 140 सेंटर्स, 140 शॉप्स हमने एस्टेब्लिश किए प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे। और इसका ये फ़ायदा है कि जन औषधि मेडिसिन कोई वो जेनरिक मेडिसिन है एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द जेनरिक एंड द ब्रांडेड आइटम। इसमें एक ही फ़र्क है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है रेट का, उसमें क्या है कि जो मार्केटिंग का पैसा है वो बच जाता है। अगर हमारी एक दवाई की सिर्फ 10 रुपए में बनती है, इसको मार्केटिंग, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद हो गया जो होलसेल डीलर होता है होलसेल, उसके बाद रिटेल, ये एक चेन मार्केटिंग चेन, ये भी बच जाता है। इधर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका फिर चीफ एरिया मैनेजर, उसका फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये वाला भी बच जाता है। और एडवर्टीजमेंट का, यानी कि अगर एक 10 रुपए की दवाई 110, इसमें मार्केटिंग जो पैसा वो बच जाता है और डायरेक्टली एक पेशेंट को मिलता है। अदरवाइज क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ब्लड बैंक एस्टेब्लिश किए। इन एडिशन टू दैट हमने हर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स रखे हुए हैं। और RT-PCR मशीन्स जो अभी तक जो ही पहली वेव आई है, सेकंड वेव में भी हमारा क्या RT-PCR टेस्ट बहुत कम होते थे, क्योंकि हमारी एक मशीन GMC में और एक सिक्किम में और एक बिमना में हुआ करती थी। अब हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया, JLNM, DH पुलवामा एंड गांधरबल। RT-PCR मशीन भी हमने एस्टेब्लिश करी। और आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ट्यूबरकुलोस एलिमिनेशन प्रोग्राम में कश्मीर डिवीजन का रोल जो बहुत अच्छा रहा। आउट ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 8 जो स्टेट्स या UTs थी जिनको गोल्ड मेडल मिला, उनमें 3 हमें ही मिला। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को गोल्ड मेडल भी मिला। और TB एलिमिनेशन भी वेल इन टाइम हम TB को एलिमिनेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने ये कहा था कि जब स्कूल खुलेंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहाँ देखा जाएगा। हाँ, अभी जो 50% अभी जो वहाँ तादाद है बच्चों की 50%, क्योंकि फ्लू के मुतासिर हो रहे हैं बच्चे, और 50% अटेंडेंस है वहाँ। हाँ, मगर किसी भी स्कूल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देखा नहीं जा रहा। देखिए हमने हाँ, कुछ और नहीं, उसमें देखिए क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है स्कूल की। हमने जो उस टाइम जो भी कंसर्न हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको हमने नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है। स्कूल का प्रिंसिपल होगा, ZDO होगा, उसको अपने स्कूल की जिम्मेदारी उसको होगी। इसमें अगर कहीं पे कोई परेशानी हो, हमारी नोट्स में आएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करेगी और हम भी एक्शन करेंगे। हमने ये मेंटेन करना। हाँ, केसेस बहुत कम हो गए हैं, नहीं वो हम में से भी बहुत सारों को नहीं है, तो मुझे भी उठाना पड़ा। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि लोग लाइट ले रहे हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी, यही अपील रहेगी, चाहे स्कूल हो, चाहे यहाँ कोई गैदरिंग है, चाहे कोई ऑफिस हो, यहाँ भी जहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, यही गुजारिश रहेगी कि प्रिवेंटिव मेजर्स ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, इसका ख्याल रखें। स्कूलों के लिए आपकी मैसेज है? स्कूलों के लिए क्लियर कट मैसेज है, कोई इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के लिए मैं उनसे अपील करता हूं, जो भी वहाँ हेडमास्टर साहिबान है या हमारे प्रिंसिपल साहिबान है या हमारे ZMO जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर किसी ने थोड़ा सा कम किया होगा वो जाए और पूरा वहाँ जो SOPs है वो मेंटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आपने गोल्डन कार्ड्स की बात की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहां पर जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं, जिनकी वहां पर डिलीवरी होती है, अगरचे वो पहली एक स्कीम में उनको सारी चीजें जो है मुफ्त दी जाती है, नहीं वो कुदरती बात है, उसके बाद भी उन्हें गोल्डन कार्ड जो है देने को कहा जाता है, जिससे उनके खाते से करीबन नहीं वो तो हमारे गवर्नमेंट सेटअप में अंडर JSS के वो भी एक स्कीम है हमारी जननी शिशु सुरक्षा योजना, मदर एंड चाइल्ड के लिए जो एक सुरक्षा योजना है JSS के अंडर,
उसको एंट्री टू एग्जिट फ्री, कोई पैसा नहीं देना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे, गवर्नमेंट सेटिंग में आएंगे, अगर आपको एक तरीके में फ्री मिलता है तो दूसरा आप यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में शिकायत ये आई है कि वहां पर उन्हें गोल्डन कार्ड मांगा जाता है और फिर उस नहीं, golden आपको card- गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं शिकायतें नहीं सर, आएगी। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल से भी आई है। नहीं, अगर आपको आइए, मेरी नोटिस में लाए, हम एक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप आम लोग जो हमें देख रहे हैं उनको क्लियर कर दें कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जा रहे, इससे पहले इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजन था, इनिशियली जो पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, इसको इसमें लाए। अब क्लियर कट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कि JSS के जो अंडर आता है उसको गोल्डन कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक इशू है यहाँ पे प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह जो हैं उनको लेके। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो आपने एक इंटरव्यू भी किसी से लिया था, रेट वगैरह फिक्स करने का, जी, अभी तक उसमें कुछ नहीं, गवर्नमेंट इज ऑन इट। हमने ये नॉट फॉर दीज ओनली, हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ये जरूर हम करेंगे। सर एक क्वेश्चन सर अप्रैल का जो महीना होता है वो पॉपुलर ट्रीज को लेकर अभी जो है 2 अप्रैल को एक मीटिंग भी हुई थी जिसके बारे में आपको भी नॉलेज होगा। तो ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स क्योंकि कहा गया है कि 20 मिलियन से ज्यादा जो है हमारे कश्मीर में अभी पेड़ है पॉपुलर ट्रीज के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, तो जिसमें डायरेक्शंस आई हैं कि उनको काटा जाना चाहिए, खासकर जो फीमेल पॉपुलर ट्रीज है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दी जो इन्फ्लुएंजा के हवाले से जो बात आई है। तो क्या अभी आप नहीं, जो पोलन से इन्फ्लुएंजा की नहीं है, बेसिकली पोलन इज एलर्जिक, इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन। और एलर्जी के लिए अगर मास्क में ये भी मास्क उसमें भी यूज आ सकता है, बिकॉज जो आपके ये पोलन्स हैं उनको प्रिवेंट करेंगे एंट्री से और आपकी एलर्जी बच जाएगी। और इसलिए यही ज़रूरी है कि SOPs को मेंटेन करें और बाकी जो है वो गवर्नमेंट वो देखेगी, जहाँ भी ये करना होगा वो करेंगे। ऐसा साहब 2 चीजें, एक तो ये जो आपने जान